Hi friends, welcome back to another video. So today we are going to Ganpati Phule. So now we are at Thane station and we'll be catching Thivim Express special train. So now we are waiting for the train. Meet my parents. Say hi. My mom, dad, my sister. Finally train is here. Now we have reached Ratnagiri station. It's 9 a.m. in the morning. Ratnagiri railway station. Here we can get auto for 200 rupees. And also we can get car 1500 rupees for direct Ganpati Phule. And auto is 200 rupees for going to the bus stand and 700 rupees per rickshaw for going to direct Ganpati Phule. 1500 rupees for this Swift Desire car. It's 40 kilometers from Ratnagiri station to Ganpati Phule Bhakta Niwas. Arewadi beach. Now we have reached Bhakta Niwas. This is the entrance. Now we have reached second floor. Our room is 304. This is the passage area. So this is our room 304. 3-bedroom. Washroom and a balcony. Now we are having lunch for 80 rupees per plate. Now we are in the balcony of this amazing room. Awesome, super view. Now it's 4 p.m. and now we are having coffee. Coffee is for 15 rupees and tea is for 10 rupees. Now we are having dinner which includes dal, rice, one sabzi, chapati, papad. Now we are having breakfast, poha and shira. It's day 2 of our trip and now we are going to Prachin Konkan. Outside of Bhakta Niwas there is one shop also where you can get some items, and there is one juice shop also. After 5 minutes of walking, now we have arrived at Prachin Konkan. Per person entry charge is 50 rupees and from here you can take tickets like this. Now we are going inside. Here outside there is cow also. झुणका भाकरी आहे, थालीपीठ प्लेट आहे, मोदक आहे, सोलकढी आहे. कॉम्बो ऑफर मध्ये उकडीचा मोदक, थालीपीठ, सोलकढी हे तिन्ही पदार्थ 50 ला आहे. और ये गाँव दिखाने के लिए मैं आपके साथ आई। यहाँ पे हमने नक्षत्र बाग तैयार She is किया our bride. और एक के जन्म नक्षत्र के अनुसार एक पेड़ आराध्य पेड़ माना जाता है। उसकी पूजा अर्चा करने से उस व्यक्ति को धन सौख्य राहत प्राप्त होती है। और एक के जन्म नक्षत्र के अनुसार हमने यहाँ बोर्ड लगाया है। आप अपने जन्म नक्षत्र के अनुसार वो बोर्ड एग्जिट करते समय देख सकते हैं।
एरीज। जब ये पार बंधा गया तभी यहाँ पीपल का पेड़ लगाया गया, इसलिए इस पेड़ की उम्र भी 400 साल पुरानी है। 400 years old tree. 400 years old tree. स्वर्ग की देवता इंद्र जी का बगीचा, वो जितना सुंदर है उतना ही हमारा कोंकण भी सुंदर है। ये गुफा हमने समय का प्रतीक बनाया है। गुफा के यहाँ है वर्तमान काल और इसके पीछे है 500 साल पुराना भूतकाल। इसके पीछे हम देखेंगे कि 500 साल पहले कोंकणी लोग कैसे रहते थे। Now we are going inside this cave. Now we are going inside this cave. Those who are taking photos, they are getting this card for 50 rupees per person. This is the cave. So this was a cave. Kokam tree, Bareli Mad tree, Surangi tree. Now we are entering Spice Garden. Spice Garden. Vanvasi. खंड, कोकम, जायफल, feels like we are trekking. Trifle, allspice, trifle. Trifle, pepper tree, काली मिर्च. ऐसा होता है उसमें, वो देखो ऊपर पेपर है। Here we can find pepper. Insulin tree. काली मिरी है काली मिरी. ये ऐसा। हाँ. एलदोड़ा, इलायची है ना? वेलची, इलायची. हाँ. हाँ इसका रूट में रहेगा। See that. शिकार गाँव पिग है, शिकार. पिग पिग. माड़ी वाला. दर्शन हम कोकणी लोग भी साल भर भगवान के पास जाकर भगवान का दर्शन करते हैं। पर जब हमारे यहाँ संशिवगा यानी कि होली का त्योहार मनाया जाता है, तब इस भगवान को इस पालकी में बिठाकर गांव के हर एक घर में ले जाते हैं। यानी कि कोकणी लोग और भगवान इनका नाता इतने नजदीक है कि हमारा एक दूसरे के पास आना जाना होता है। इस देवी का नाम वागजाई है। हमने ये नाम जानबूझकर रखा क्योंकि जिस जंगल में बाघ पाए जाते हैं वो जंगल समृद्ध माना जाता है। 500 साल पहले का जंगल भी ऐसा ही समृद्ध था। हमारे भाव विश्व में उसे भगवान का स्थान दिया गया है। हम कोकणी लोग वड, पीपल, सांप इनकी पूजा करते हैं, यानी कि हम निसर्ग पूजक हैं। इसलिए हमारी इस देवी का नाम भी प्रकृति के संबंधी वागजाई ऐसा ही रखा है। यहाँ पे हमारे पुराने वाद्य लकड़ी का ढोल है, मिट्टी के ताशे हैं। ताशे का नीचे का भाग मिट्टी से तैयार किया। ये ताशे 110 बरस पुराने हैं। ये बजाने वाला कुशल हो और इनका आवाज 1 से 2 किलोमीटर दूरी पर पहुंचता है। पहले इसका इस्तेमाल धार्मिक कार्य में और संदेश वहन के लिए किया जाता था। when people used to fight, how people used to come to the temple, and the temple में जो head होता था ना, they used to resolve their fights. भाई ऐसे होगा, ऐसे होगा. और होली में ना ये जो है, what is in God, ये चपाटा देव हमारे यहाँ इसे भगवान का स्वरूप माना जाता है। जब गांव में होली का त्योहार मनाया जाता है तब गांव के सुख सुविधा के लिए इसे मन्नतें मांगी जाती है और भूतों पर नियंत्रण रखने के लिए इसकी पूजा की जाती है।
और ये वीरगल है, वीर प्राप्ति लोगों का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। That's a wishing stone. You can ask for a wish and then you'll get it. ये रियल है? That I don't know. You can try it. Ask for a wish and see. जो चाबुक से मारते, वो लोग खेल करने के लिए गांव में आते थे, वो यहाँ दिखाए। Kadak Lakshmi. So my some men used to come for money and they used to hit themselves. They said, "See, we are so strong. Pay us money." कड़क लक्ष्मी। पानी इनके मकान में लग जाता। तभी भी इतनी छोटी सी नौका लेकर ये लोग 8-10 घंटे गहरे समुद्र में मछली पकड़ते हैं और सुबह वापस लौटते। कोली समाज। 10 hours they used to stay in the ocean to catch fish. में बार्टर सिस्टम, यानी कि लोहा, सुतार, भाई, ये लोग घर घर में जाकर अपनी सेवा देते हैं। उसके बदले में इन्हें पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन अनाज मिलता है। यानी कि इस नाई को गांव के हर एक घर में जाकर एक आदमी के बाल काटने के साल भर के लिए 4 पाइली, यानी कि आज का 8 किलो अनाज मिलता है। इतनी कम विदागी पर ये लोग समाज की सेवा करते हैं। नाई के बारे में हमारे लोक साहित्य में और एक मजे का वर्णन किया है कि गांव की हर एक खबर नाई को पता होती है और नाई को पता चली हुई खबर पूरे गांव को पता चलती। अब जैसे आप आए, ये खबर नाई को पता चली, उसी तरह वो हमारे पूरे गांव को पता चला। हमारा पूरा गांव आपके स्वागत के लिए उत्सुक है। रिवाज के अनुसार पहले हम मुखिया के घर जाएंगे, बाद में पूरा गांव देखेंगे। So he's a barber. Seriously, what they used to do, they used to go house Barber. to house, not for money. They used to cut your hair and then they used to get. Here there is water coming. ये मुखिया है, राजा के गांव का पहला प्रतिनिधि यानी कि मुखिया। धार्मिक और राजकीय संदर्भ में मुखिया का पहला सम्मान गांव में न्यायदान करना, कानून और सुव्यवस्था संभालना, टैक्स कलेक्ट, ये काम मुखिया करता है। ये मुखिया की बीवी। माजघर के दरवाजे की चौकट ही उनके लिए मर्यादा थी। यहाँ पे मुखिया के 2 बच्चे, वो हमारे परंपरा से चलता आया खेल चौपट खेल रहे हैं। महाभारत में ये खेल धर्मराज और दुर्योधन इनके बीच द्यूत नाम से खेला गया। मकान की रचना देखिए, मुखिया जिस ऊंचाई पर बैठे हैं उसे ओटी कहा जाता है। गांव के मान्यवर लोग ओटी पर बैठे हैं। ये सामने है, इसे पड़वी कहा जाता है। गांव के सर्वसामान्य लोग पड़वी पर बैठते हैं। मुखिया के पीछे माजघर है, यानी कि पहले का बेडरूम, वहाँ भगवान का घर, यहाँ रसोई घर, घर के सामने आंगन है, आंगन में तुलसी वृंदावन है। छप्पर की रचना देखिए, ऊपर छोटा छप्पर है, बीच में गैप है, नीचे बड़ा छप्पर है। कोकण में गर्मी बहुत होती है, हमेशा ठंडा रहता है। स्माइल कर सोना, स्माइल कर। अरे नन्ना, स्माइल कर। चलिए, ये लो। किती वेळ सांगितलं? काय वगैरे A child is playing with water. पारिजात, जामुन। यह हमारे गांव का प्रमुख उत्पादक घटक माना जाता है। ये किसान। गांव के 12 बलूतेदार, राजा, मुखिया, उन्हें अनाज देने का काम ये किसान करता है। ये जो चूल्हा है, इसे कोंकणी भाषा में पिरसा कहा जाता है। यह हमेशा जलता रखा जाता था, क्योंकि पहले लाइटर या माचिस नहीं थी। ये खोइनी है, इसका इस्तेमाल मछली पकड़ने के लिए किया जाता था। इसे ऊपर से वेलियोन से बांधकर ये पानी में रखा जाता है। इसके अंदर की रचना ऐसी है कि एक बार अंदर गई हुई मछली फिर से बाहर नहीं आ सकती। वहाँ पे गोमई से पुताई की हुई टोकरी है, उसे कोंकणी भाषा में कनगी कहा जाता है। उसका इस्तेमाल अनाज रखने के लिए किया जाता है। ये किसान की बीवी है, किसान की लड़की है। वहाँ पे झूला है, वो झूला किसान के घर हमेशा के लिए टंगा हुआ रखा है, क्योंकि हमारे किसान के घर हर साल झूला झूलता है। हर किसान को 8 या 10 बच्चे होते हैं, यानी कि उनकी जॉइंट फैमिली थी। ये उछल है, इसका इस्तेमाल कपड़े सुखाने के लिए किया जाता था। और यहाँ कोकण का त्योहार दिखाया है गौरी और गणेश जी का। गणेश जी के त्योहार पर गणेश जी ये कुम्हार करता है। ये मकान कौले बनाने का काम भी ये कुम्हार करता है। ये जो सफेद रंग वाला मटका है, ये माड़ी निकालने का मटका है। कोकण में नारियल के पेड़ बहुत होते हैं। इन्हें नारियल आने से पहले पोई आती है। उस पोई को आधा काटा जाता है
और उस पोई को गुड़हन के पत्ते रगड़कर लगाए जाते हैं। वो पत्ते अंदर की माड़ी खींच लेते हैं और ये बूंद बूंद आने वाली माड़ी इस मटके में इकट्ठा की जाती है। हमारे यहाँ भंडारी समाज के लोग ये व्यवसाय करते हैं। काल के अनुसार 12 बलूतेदारों के व्यवसाय नष्ट होते जाते हैं, लेकिन माड़ी निकालने का व्यवसाय यह अभी भी शुरू है। Village life. This is Vani. Carpenter. लकड़ी की औजारे बनाते। मकान बनाने का काम भी ये सुतारी करते हैं। सावंतवाड़ी का सुतार, सावंतवाड़ी के लोगों के लकड़ी के खिलौने संसार में बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने बनाई हुई कुछ सुंदर चीजें पर हमारे संस्था के हस्तकला समन्वय केंद्र में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे दरवेशी दिखाया है भालू का खेल करने वाला और सपेरा दिखाया है सांप का खेल करने वाला। गाड़ी है ये आते थे पहले सांप के साथ बीन बजाते थे एंड किसने यूज की डांस। पहले कोकण की राजकीय स्थिति अस्थिर थी। यहाँ के कई लोग सेना में थे। उन्हें लगने वाली लोहे की ढाल और तलवारें बनाने का काम लोहार करता था। विशेषतः उन्होंने बनाई हुई कुछ तलवारें अभी भी हमारे यहाँ मराठा और मुखिया उनके पास है और दशहरे पर उनकी पूजा की जाती है। ये स्वॉर्ड्स बनाता था फर्स्ट टाइम अपने बगीचे में जाकर खूब नारियल लेकर आता और तेली उसके सामने तेल निकाल कर देता। ये तेल की घानी है, इसे कुंड कहा जाता है। इसमें सूखा नारियल डाला जाता है। ये जो खड़ी लकड़ी है इसे लाट कहा जाता है। इस लाट को या आड़ी लकड़ी इस तरह बंधी जाती है जिससे कि ये लाट सीधी तरह खड़ी हो जाए। यहाँ कोलू को बैल बांधा जाता है और यहाँ आड़ी लकड़ी पर पत्थर रखकर तेली खुद यहाँ बैठता है। ये सब वजन बैल गोल घुमाने से लाट पर पड़ता है। लाट का वजन नारियल पर पड़ता है और नारियल पीस कर तेल निकाला जाता है। ये तेल बाहर निकालना है तो कोलू का बैल छोड़ना पड़ता है, कोलू बाजू करना पड़ता है, आड़ी लकड़ी बाजू करनी पड़ती है और अंदर का तेल हाथ से बाहर निकाला जाता है। फिर से नया तेल निकालने के लिए नया नारियल डाला जाता है। यानी कि इस तेली को पहले इतना सा तेल निकालने के लिए 1 या 1.5 घंटा लगता है। तेली। किसी को भी व्यवसाय बदलने की स्वतंत्रता नहीं। बम्बू से चीजें बनाने का काम ये बुरुड़ करता था। ये सूप है, ये फूलों की टोकरी है और ये रोली है। रोली का इस्तेमाल अनाज धोने के लिए किया जाता है और धार्मिक महत्व भी है। हमारे यहाँ जब शुभ कार्य होता है तब घर की कुंवारी लड़कियाँ रोली में दिया रखकर खड़ी हो जाती है। शुभ कार्य होने से पहले दिया अगर बुझ गया तो कार्य अशुभ माना जाता है। आज भी हमारे यहाँ किसी की भी शादी बम्बई में हो तो बम्बई में सब चीजें मिलती है, लेकिन ये रोली नहीं मिलती। रोली लेने के लिए उसे गाँव आना पड़ता है। घर में लकड़ी, मिट्टी और पत्थर के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। ये जो यहाँ जातनी जैसा दिख रहा है इसे घिरट कहा जाता है। जातनी में अनाज पिसा जाता है तो घिरट में अनाज के छिलके अलग किए जाते हैं। ये मोदक पात्र है, यानी कि पहले का कोकनी कुकर। इसमें नीचे पानी डाला जाता है, ऊपर केले का हरा पत्ता रखकर इस पर मोदक रखे जाते हैं और ढक्कन लगाकर मोदक पात्र चूल्हे पर रखा जाता है, यानी कि अंदर के मोदक स्टीम हो जाते हैं। ये पूरन यंत्र है, इसमें उबली हुई दाल डाली जाती है और ये 2 राड गोल घुमाने के बाद नीचे से पूरन गिरता है। बाद में उससे पूरन पोली तैयार की जाती है। ये सेविया निकालने का लकड़ी का यंत्र है, वो सेविया निकालने का लोहे का यंत्र है। वहाँ पे सेविया का लकड़ी का पाट है। ये चाय की किटली है और उसके बाजू में टिफिन बॉक्स है। ऊपर पानी पीने का लोटा, नीचे खाने की 3 डिब्बे है, बाजू में 2 चम्मच है। पहले का कोकनी जीवन यह ऐसा कष्टमय था और हजारों बरस इसे ऐसे ही जी रहे थे। भेटतोय का बघूया आपण तो टिफिन शादी 8-10 साल में हो जाती, तब तक ये चूड़ी वाला लड़की को बिना मूल्य चूड़ी चढ़ाता था। जब लड़की की शादी हो जाती थी तब लड़की के पिताजी इस चूड़ी वाले को एक छोटा सा सोने का गहना देते थे। इतनी ही उनकी विदागी थी और सभी 12 बलूतेदार अपने घाटा मुनाफे का विचार न करते हुए सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझकर अपना व्यवसाय करते। एक स्थान है जहाँ गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते। औरतें पानी भरने के लिए और कपड़े धोने के लिए आते थे।
छोटे बच्चे स्नान करने के लिए और मछली पकड़ने के लिए आते हैं। यानी कि कोकणी जीवन का सार यही हमारा पनघट। Water is flowing. Wow, very cool water. के लोगों का व्यवहार उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। मकर संक्रांति के पहले दिन उन्होंने गांव छोड़ दिया। गांव के बाहर चर्मकार का मकान था। चर्मकार गरीब था लेकिन श्रद्धालु और नीतिवान था। शंकर जी ने किसी भी जाति पाति का भेद न मानते हुए चर्मकार को मशाल दिखाने की विनती की। चर्मकार ने भी अतिथि देवो भव समझकर मशाल दिखाने के लिए बाहर निकले। आज जहाँ मार्लेश्वर है वहाँ जाकर भगवान शंकर जी ने अपना असली रूप प्रकट किया और चर्मकार को दर्शन दिया और उसे कहा कि आज से मैं यही रहूंगा। इस घटना को 500 साल हो गए, लेकिन आज भी मकर संक्रांति के पहले दिन भगवान शंकर जी की पालकी उनके मूल गांव से निकलती है और उसे मशाल दिखाने का काम चर्मकार का आज का वंशज करता है। मतलब मार्लेश्वर यह ऐसा स्थान है जहाँ किसी भी प्रकार का जाति भेद नहीं माना जाता। Monkeys, mango tree, Marleshwar. Squirrel, shepherd, दालचीनी. कुछ खरीदना है तो खरीद सकते हैं। यहीं से आगे रेस्टोरेंट है और बाद में लास्ट पॉइंट शेल एग्जीबिशन है। शेल एग्जीबिशन में गाइड आपको अलग रहेगा, अंदर कैमरा अलाउ नहीं है और वो देखने के बाद उसके बाजू से एग्जिट है। मेरा गाइड यही है। Thank you. Here one can go up. Here we can buy many items. There is a restaurant in the middle of this jungle and we are having this. Katak tree. Shell Museum. Kinjal. Now we are going towards the exit. Kaju. Now we are heading towards exit. Magic Garden has the following amenities. We are having dinner. This is Bhakta Niwas at night. Here there is one garden. Many people are coming now. ऐसे चीज़ अंदर जाएगा, मेरा चप्पल उधर रखेगा, नहीं रहेगा चप्पल।
Good morning, guys. It's day 3 of our trip, and this is the morning view, balcony view of Bhakta Niwas. 7 a.m. in the morning. Day 3 breakfast. It's day 3 and now we are going to Ganpati Phule Mandir, Ganpati Mandir. Now we are going inside the temple. This is the entrance. We have reached temple. Here there is a shoe stand. And this is the beach, Ganpati Phule beach. Here there is a sale going on. Here we can buy shoes and other items. There is a line. This is the temple. Now we are having Mahaprasad. Inside the temple there is one ATM also. This is the queue. Here we can buy Laddu Prasad. It's the temple. There are many hotels and shops. So this is the entrance of the temple, and in front of it we are having one Saras Pradarshan 2023. Sale is there, so we are going inside. Cashew nut, clothes, trees. तसेच गुहागर तालुका प्रतिनिधी यांनी सुद्धा आपला सेल रिपोर्ट तात्काळ कंट्रोल रूम कडे जमा करायचा आहे. गुहागर तालुका प्रतिनिधी. In front of the temple we are having this beach. There are a lot of activities here. Boating activities, riding activities.
Now we are taking boat for 100 rupees per person. MTDC Resort. Open gym at MTDC. MTDC reception. Now we are going back to Bhakta Niwas for 80 rupees in auto. Now we are having dinner. Now we are going back to Ratnagiri from this Swift Desire for 1500 rupees for 4 person. Our train has arrived after being late for 2 hours. Pune Karmali Express. Now we have reached Panvel station.